So girls, we are starting with the new chapter, first chapter of your book, that is transformation of axes in two dimensions. So transformation of axes can be done in two ways. Transformation means अपने axis को change करना. So this is your x-axis, this line, and this line is your y-axis. Now, transformation of axis can be done in two ways. First is shifting of origin, in which this was the origin, so I have shifted the origin to the new point O dash. So origin shift हो गया. Now the new capital X axis is parallel to the old X axis and new Y axis is parallel to the old Y axis. You can see this is my new X axis and this is new Y axis. So in this, origin is shifted to a new point. Now if we have shifted the origin to new point by moving the axis, एक्सिस की स्पेलिंग AXES एक्सिस होते हैं. यहाँ पे एक होता है हमारा एक्सिस. सो ये वाला एक्सिस नहीं है, ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्योंकि प्लूरल है ये. ओके. सो नाउ क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल मूव कर दिया टू इट्स ओरिजिनल एक्सिस, सो origin has been shifted to the new point. Now if P is any point in space, now this P will have two coordinates, small xy with respect to the old coordinates and capital XY with respect to the new coordinate. So now if I drop a perpendicular from P on x-axis, then it will touch the new axis as well as old axis. Now with respect to the new axis, इसके coordinates है capital X. इसका मतलब इसका distance from the new origin will be capital X. With respect to the old, coordinates are small x. इसका मतलब इस point का distance from the origin will be small x. Further, we have shifted the origin to the point h, k. इसका मतलब ये जो distance है, इस point का distance जब हम यहाँ से perpendicular drop कर रहे हैं, from the origin is h. So now can you see this small x can be written as h plus x, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस हमारा कैपिटल x है. सो स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h. सिमिलरली जब मैं यहाँ P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगी y एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस हो गया कैपिटल Y और ये पूरा डिस्टेंस हो गया स्मॉल y, एंड दिस डिस्टेंस इज k जब हम O डैश से y के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं. सो दिस इज y, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो कैपिटल Y. So small y is equal to capital Y plus k. So this is the relation between the old and new coordinates. Small x is equal to capital X plus h. Small y is equal to y plus k, where h comma k is the new origin. That is, the new coordinate axis has been shifted to the new origin h comma k. जब भी आपने ये रिलेशन यूज़ करना है, दिस लाइन जो आपकी बुक में नहीं लिखी हुई आपको ज़रूर लिखनी है कि यहाँ पे जो स्मॉल एक्स वाई हैं आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओल्ड एक्सिस एंड कैपिटल एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द न्यू एक्सिस. सो कई बार क्या होता है, हम यहाँ पे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश या यहाँ स्मॉल एक्स वाई ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन. सो ये लाइंस लिख के हम हमेशा ये क्लियर ज़रूर करेंगे कि इनमें से ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से हैं और न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से हैं. सो बहुत ही इजी रिलेशन है, याद रखना. ये आर्टिकल 1 ऑफ योर बुक इन्होंने एक्स डैश और वाई डैश से डिनोट किया है, एंड देन यहाँ पे इन्होंने न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कर दिया. ओके. सो आर्टिकल पेपर में नहीं आता, आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है. सो नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ इट्स एग्जांपल्स. So let us start with the first example. Find the new coordinates of the point 1, minus 2. When the origin is changed to 1, minus 1, the new axis being parallel to the original. So when the new axes are parallel to the original, that means the origin has been shifted. Now the origin is changed. तो हमें इस पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं व्हेन ओरिजिन इज चेंज्ड टू 1, minus 1. सो ये जो 1, minus 1 है ये हमारा न्यू ओरिजिन है. दैट मीन्स ये h और k की वैल्यू हो गई. सो h इज़ 1 एंड k इज़ -1. नाउ
पॉइंट हमारा 1, इसके न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, इसका मतलब ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं. सो स्मॉल x इज़ 1 एंड स्मॉल y इज़ -2. नाउ यूजिंग द रिलेशन, सो ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है. सो वी विल यूज़ कैपिटल X इज इक्वल टू x प्लस एच. नाउ स्मॉल x हमारा क्या था, 1 इज इक्वल टू कैपिटल X हमने फाइंड करना है और h क्या है, 1. सो कैपिटल X की वैल्यू आ गई 0. ऐसे ही स्मॉल y इज इक्वल टू y प्लस के होता है. सो स्मॉल y क्या है हमारे पास, स्मॉल y है -2. सो यहाँ आ गया -2 इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के क्या है, के है -1. सो कैपिटल Y कितना आ गया, -2 प्लस 1 इज -1. सो द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर 0 एंड -1. So ये 0, -1 are the new coordinates of the points. Now, so इन्होंने क्या किया, यहाँ से कैपिटल X की वैल्यू x माइनस एच और कैपिटल Y की वैल्यू y माइनस के करके क्वेश्चन को सॉल्व किया. तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो. नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म टू पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट 1, -2 द इक्वेशन. तो अब आपने इस पूरी इक्वेशन को चेंज कर देना है विद रिस्पेक्ट टू द न्यू एक्सिस. सो क्या, सो हमारे पास ओरिजिन इज़ 1, -2. तो h और k की वैल्यू आ गई 1 और -2. नाउ x इज इक्वल टू x डैश प्लस एच, यानी कि स्मॉल x इज इक्वल टू x डैश प्लस एच की वैल्यू हो गई 1 एंड स्मॉल y इज़ y डैश प्लस के की वैल्यू होगी -2. मैंने इसको कैपिटल X कैपिटल Y लिया था, इन्होंने x डैश और y डैश लेके किया, जो मर्जी कर सकते हो आप. तो अब आप क्या करोगे, स्मॉल x की और स्मॉल y की ये वाली वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर दोगे. तो ये वैल्यूज़ इन्होंने सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेशंस करके सॉल्व किया. सो दिस इज़ द न्यू इक्वेशन. तो उसके बाद ये चेंजिंग टू कर देते हैं. अब ये ज़रूरी नहीं है करना, आप अपने क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ सकते हो, दैट दिस इज़ द इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द न्यू एक्सिस, प्रोवाइडेड कि जब आप ये लिख लेते हो रिलेशन x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच एंड y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के, तो साथ में आपने ये वाली लाइन्स ज़रूर लिखनी है जो कि ये बुक में नहीं लिखते. And I am repeating that you can leave your answer up to here, that is in terms of x dash and y dash, क्योंकि हमने ऊपर मेंशन कर दिया है कि हमारे जो न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं वो x dash और y dash हैं. I hope this is clear to you. Now third example, by a suitable translation of the coordinate axis, remove the terms of the first degree in the equation. So ये जो है बहुत बड़ा यूज़ है इसका. आप देखोगे जब भी हमें अपने क्वेश्चन में से फर्स्ट डिग्री टर्म्स को रिमूव करना होगा तो हम हमेशा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करते हैं. फर्स्ट डिग्री टर्म्स को रिमूव करने का मतलब है ये फर्स्ट डिग्री और ये फर्स्ट डिग्री टर्म है. सो इनको रिमूव करना है हमने. सो क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट अस शिफ्ट द ओरिजिन टू द पॉइंट h, के. तो x को x डैश प्लस एच और y को y डैश प्लस के पुट कर दिया. इसमें वैल्यूज़ पुट की. सिंपल कैलकुलेशंस हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ हुई है, यहाँ पे ये क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया. सॉल्व करके एक्स डैश वाली टर्म, वाई डैश वाली, एक्स डैश वाई डैश वाली. सो ये आ गई एक्स डैश वाली टर्म्स को कलेक्ट किया, वाई डैश वाली, और ये पूरी कांस्टेंट टर्म. नाउ क्योंकि हम फर्स्ट डिग्री टर्म को रिमूव करना चाहते हैं तो मैं इसके कोफिशिएंट को 0 कर दूंगी और इसके कोफिशिएंट को 0 कर दूंगी. तो इसको 0 करने से मेरे पास x और h और k में 2 इक्वेशंस बन गई. नाउ आई कैन ईजिली सॉल्व दिस 2 इक्वेशंस बाय दिस मेथड और बाय विच एवर मेथड यू वांट टू गेट द वैल्यूज ऑफ h एंड k. सो दैट मीन्स इफ आई शिफ्ट द ओरिजिन टू दिस पॉइंट देन द न्यू इक्वेशन विल नॉट कंटेन द फर्स्ट डिग्री टर्म. सो ये h और k की वैल्यूज़ यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट किए हैं तो h और k x डैश y डैश वाली टर्म तो 0 ही होगी. ये कांस्टेंट टर्म में पुट करके दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन विच फर्स्ट डिग्री टर्म्स आर एब्सेंट और मिसिंग. Similarly, by suitable shifting of origin, find the transformed equation corresponding to this in which the first degree terms are missing. So let us shift the origin to the point alpha comma beta. अब यहाँ h के इसलिए नहीं लिया क्योंकि h यहाँ ऑलरेडी यूज़ होता है तो उन्होंने अल्फ़ा बीटा कर दिया. सो x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस अल्फ़ा, y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस बीटा.
ये जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस की यहाँ पे, देन वही क्वाड्रेटिक टर्म्स को अलग कर लिया, एक्स डैश वाई डैश को अलग, कांस्टेंट को अलग। अब एक्स डैश वाली और वाई डैश के कोफिशिएंट्स को ज़ीरो करने से हमें अल्फ़ा और बीटा में दो इक्वेशंस मिल जाएंगी। इनको सॉल्व करके हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। ये वैल्यूज़ फाइंड कर ली। ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जब आप वापस उसी इक्वेशन में पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, तो ये दोनों टर्म्स तो ज़ीरो हो जाएंगी और यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने से आपको एक कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी। एंड ये वैल्यूज़ पुट कर दी इन्होंने, क्या किया है ये, और ये कांस्टेंट टर्म थोड़ी बड़ी है तो कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन विच फर्स्ट डिग्री टर्म्स आर मिसिंग। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप यहाँ तक छोड़ सकते हो अपना क्वेश्चन, प्रोवाइडेड यहाँ पे जब आप ये पुट कर रहे हो तो आपको साथ में क्या लाइंस लिखनी है, वेयर स्मॉल एक्स वाई आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओल्ड एक्सिस, एंड आप एक्स डैश वाई डैश ले रहे हो, एक्स डैश वाई डैश आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द न्यू एक्सिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, on shifting the origin to the point 1, -1, the axis remaining parallel to the original axis, the equation of a curve becomes. So becomes का मतलब ये है कि ये ओरिजिनल इक्वेशन नहीं है अब आपकी, ये न्यू इक्वेशन है, ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के बाद बनी है। सो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट, इसका मतलब मुझे एच और के की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इनकी तरह करने की बजाय आप क्या करोगे, इसमें देखो क्या बनेगा, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। अब यहाँ पे क्योंकि हमें ये जो इक्वेशन है ये न्यू कोऑर्डिनेट्स में दी हुई है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो कि जब हम x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच लिखते थे तो ये न्यू होता था और ये ओल्ड होता था। अब न्यू वाला हमें ऑलरेडी स्मॉल एक्स दिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई प्लस के। सो कंफ्यूज नहीं होना आपने बिल्कुल भी यहाँ पे। सो देखो क्या बनेगा, साथ में अब आप क्या यहाँ पे क्लियरली लिख दोगे दैट वेयर, अब आपके जो कैपिटल एक्स वाई हैं दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओल्ड एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू द ओल्ड एक्सिस, एंड स्मॉल एक्स वाई हैं जो यहाँ पे आपके वो हैं विद रिस्पेक्ट टू द जो स्मॉल एक्स वाई हैं वो हैं आपके विद रिस्पेक्ट टू द न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई यहाँ पे ओल्ड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई यहाँ पे न्यू एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट अब जो आपको ये इक्वेशन दी हुई है वो स्मॉल एक्स वाई में दी हुई है, तो इसकी हेल्प से अब आप स्मॉल एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो कैपिटल एक्स माइनस एच, और स्मॉल वाई की वैल्यू निकालोगे कैपिटल वाई माइनस के, और ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज़ क्योंकि ये न्यू कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं इसमें पुट कर दोगे, तो आपका जो आंसर है वो कैपिटल एक्स वाई में आ जाएगा। आप यहाँ पे स्मॉल एक्स डैश स्मॉल वाई डैश लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, आपका आंसर स्मॉल एक्स डैश और स्मॉल वाई डैश में आ जाएगा, एंड दैट इज दिस विल बिकम द ओरिजिनल इक्वेशन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। If you have any doubts, you can ask me in the class. This is your first exercise along with the answers. So you have to try the exercise on your own. So next topic होगा अब हमारा second transformation of axis, that is the rotation of axis. So rotation of axis में क्या होता है? So rotation of axis में देखो क्या होता है, आपके पास ये ओल्ड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, इसमें ओरिजिन सेम रहता है लेकिन एक्सिस जो है वो रोटेट हो जाते हैं। सो ये रोटेट करने से आपका ये कैपिटल एक्स डैश एंड कैपिटल वाई डैश न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गए, एंड द एक्सिस हैज़ बीन रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा। सो ये देखो ये मैंने बनाया ओल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये है न्यू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा, एंड दिस इज द ओरिजिन। Now if I take P any point, then again it will have two coordinates, small xy with respect to the old axis and capital XY with respect to the new axis. So इसका मतलब अगर मैं P से एक perpendicular ड्रॉप कर दूँ यहाँ पे ओल्ड एक्स एक्सिस पे, तो ये मेरे पास आएगा स्मॉल एक्स,
और P से ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी पड़ेगी कैपिटल एक्स एक्सिस पे। तो इसको मैं M और N बोल रही हूँ। तो आपके पास जो ON है, ON विल बी कैपिटल एक्स एंड OM विल बी स्मॉल एक्स। सिमिलरली यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप की ओल्ड एक्स एक्सिस पे, उसको से M डैश बोल देते हैं। तो आपका OM डैश हो जाएगा स्मॉल y, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप की न्यू y एक्सिस पे, तो इसको हम N डैश बोल देते हैं, N डैश। तो ON डैश विल बी इक्वल टू कैपिटल Y। तो सबसे पहले तो यही समझना है आपको। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप की एक्स एक्सिस पे तो ये x है, ये यहाँ पे न्यू एक्स एक्सिस पे की है तो ये कैपिटल x है। सिमिलरली ओल्ड y एक्सिस पे की है OM डैश तो स्मॉल y, न्यू y एक्सिस पे की है तो ON डैश इज कैपिटल Y। नाउ यू हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन दीज एंड यू नो दैट एक्सिस हैज बीन रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। Now let us see how to find relation between them. So देखो, मुझे इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये OM था, यहाँ N से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एक्स एक्सिस के ऊपर और इसको बोल दिया L। तो अब मैं OM को मैं लिख सकती हूँ OL माइनस ML, OL माइनस ML। नाउ OL हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो ट्राइंगल ONL, ट्राइंगल ONL दिख रहा है हमें। ONL में मुझे OL की वैल्यू चाहिए और ON मुझे पता है कि कैपिटल एक्स के इक्वल है। तो अगर मैं OL ओवर ON लिख दूं तो ये कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से मुझे OL की वैल्यू मिल गई, ON which was equal to capital X cos theta. Similarly ML निकालना है मुझे। ML के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से ML के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉप कर दी, इसको बोल दिया K। तो नाउ ML इज क्लियरली इक्वल टू KN, ML इज क्लियरली इक्वल टू KN। KN की वैल्यू निकालने के लिए मुझे दिख रहा है ट्राइंगल PKN। उससे पहले आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि PN is perpendicular to this and PM is perpendicular to this. PN is perpendicular to new x-axis and PM is perpendicular to old x-axis. Now angle between new and old axes are theta. So that means angle between their perpendiculars will also be theta. So इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है। तो क्योंकि दोनों एक्सिस के बीच में एंगल थीटा है तो इनकी परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा होगा। तो क्योंकि ये एंगल थीटा है सो दैट मीन्स इन ट्राइंगल PKN मुझे KN की वैल्यू चाहिए और PN मुझे पता है ऑलरेडी, पता है कि नहीं पता है, क्योंकि PN इज इक्वल टू ON डैश। यस, PN इज इक्वल टू ON डैश। तो PN की वैल्यू है कैपिटल Y। सो यानी कि मुझे KN की वैल्यू चाहिए थी और PN की वैल्यू मुझे पता है। सो ये बन गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन थीटा। सो दैट मीन्स KN इज इक्वल टू PN जिसकी वैल्यू Y साइन थीटा। सो यहाँ ये वैल्यूज जब हम इसमें पुट करेंगे, नाउ OM इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू OL विच इज x कॉस थीटा माइनस ML which is equal to KN which is equal to Y sin theta. So small x is equal to capital X cos theta minus capital Y sin theta, where small x is the coordinate with respect to the old axis and capital X and capital Y are coordinates of the point with respect to the new axis. Now ऐसे ही मुझे स्मॉल y के लिए चाहिए। देखो अब स्मॉल y क्या था, ये था OM डैश। सो OM डैश के लिए हम क्या करेंगे, सो
एम डैश, देखो अब ओ एम डैश देखना है मैंने. नाउ ओ एम डैश इज इक्वल टू एम पी बोल सकती हूँ मैं. यस. फर्दर एम पी किसके इक्वल है? पी के प्लस एम के. पी के प्लस एम के. नाउ पी के देखो, अगेन देखो ये ट्राइंगल बन रहा है के एन पी. सो ट्राइंगल ये हमने पी के एन बनाया था. अब मुझे पी के की वैल्यू चाहिए और पी एन मुझे पता है. सो अगर मैं पी के ओवर पी एन करती हूँ तो ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करने से कॉस थीटा बन गया. इसका मतलब पी के की वैल्यू आ गई पी एन कॉस थीटा, दैट इज कैपिटल वाई कॉस थीटा, प्लस एम के. एम के निकालने के लिए एम के इज इक्वल टू एन एल, और एन एल मैं निकाल सकती हूँ ट्राइंगल ओ एन एल से. ट्राइंगल ओ एन एल में एन एल ओवर ओ एल, नहीं एन एल ओवर ओ एन विल बी perpendicular over hypotenuse, that is sin theta. ओ एन की वैल्यू मुझे पता है कैपिटल एक्स, सो एन एल आ गया कैपिटल एक्स साइन थीटा, और एन एल एम के इक्वल है, तो ये आ गया कैपिटल एक्स साइन थीटा. और ओ एम डैश क्या था? स्मॉल वाई. ओ एम डैश था स्मॉल वाई. सो ये मेरे पास रिलेशन आ गया वाई का विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई. सो फ्रॉम दिस आर्टिकल we have derived the relation as this small x is equal to x dash cos theta minus y dash sin theta, and small y is equal to x dash sin theta plus y dash cos theta, where x dash and y dash are coordinates of the new axis and small x y are coordinates in terms of the old axis. So ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये यूज़ होगा हमारा बार बार रिजल्ट्स. अब ये देखो यहाँ से ये तो मैंने ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू निकाले हैं. ऐसे अगर मुझे न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड निकालने हो तो ये बहुत इजी है सॉल्व करना. ये जो मैंने लिखा है इसको मैं टेबुलर फॉर्म में लिख सकती हूँ. देखो ऐसे करती हूँ. देखो मैंने क्या किया, ये स्मॉल एक्स वाई ओल्ड वाले, ये एक्स डैश वाई डैश न्यू वाले. सो यहाँ से स्मॉल एक्स में एक्स डैश का कोफिशिएंट था कॉस थीटा और वाई डैश का कोफिशिएंट था माइनस साइन थीटा. सिमिलरली स्मॉल वाई में एक्स डैश का कोफिशिएंट था साइन थीटा और वाई डैश का कोफिशिएंट था कॉस थीटा. तो इसको मैं ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख सकती हूँ. तो इसकी हेल्प से अब अगर मुझे एक्स डैश इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई चाहिए तो देखो बड़ी आसानी से आ जाएगा. एक्स डैश कैन बी रिटन एज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ये आ गया. सिमिलरली वाई डैश कैन बी रिटन एज माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा. सो ये हमारे पास न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड एंड दिस इज ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू. तो आप ये टेबल याद रख सकते हो, बहुत इजी है ये टेबल याद रखना. यहाँ पे ओल्ड, यहाँ पे न्यू, डायगोनल जो थी वहाँ पे कॉस थीटा, ऑपोजिट टू डायगोनल में साइन थीटा विद वन माइनस हेयर. सो इसकी हेल्प से आप ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू या न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड आराम से फाइंड कर सकते हो. सो इस लेक्चर के लिए इतना ही करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर.